एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं दीपिका एसलिंडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। एक डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। एक ऐतिहासिक पहल के तहत मेघालय सरकार ने पहली बार शिलोंग फिल्म फेस्टिवल 2026 का ऐलान किया है। ये फेस्टिवल 25 से 27 मार्च तक शिलोंग की स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। सूचना और जन संपर्क मंत्री लाकमेन रुम्बुई ने इसे सिनेमा, संस्कृति और युवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग स्टेप बताया है। 3 दिन के इस फेस्टिवल में देश भर, नॉर्थ ईस्ट और अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही नए फिल्म मेकर्स के लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशन भी होंगे। सरकार का कहना है कि इससे मेघालय को फिल्म मेकिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। The departments. So basically, we want to release. We want to announce, also give press brief about first Shillong International Film Festival. This film festival has been a long pending demand in our state, but finally, under the leadership of Honorable Minister, we are now able to do this and with the support of Government of India, also in the guidance of Honorable Chief Minister. So this is a I think path breaking for us, and then this will continue. This is going to be a first film festival, and 2 international films are also part of this, and we are going to continue, and we are going to increase this. So this is basically a starting line where we are going to enter into government is going to now enter into the gap that is existing in the films in the film industry. So film industry in our state has not been picking up because of various issues. So now the government is taking keen interest in this. So this is one of the initiatives under the IPR department. So with this few words, I would like to briefly about the initiative of the government of Meghalaya, with the support of the government of India, that this year the government of Meghalaya through the IPR will formally held the Shillong Film Festival on the 25th till 27th of March 2026. As Commissioner Secretary mentioned, that this is the path breaking because many things have to follow after this. In this festival, there are so many components which is there. Number one, we are very happy that there are so many entries from other part of the country, other part of Northeast, and also from other part of the outside the country, which will be screened in that film festival, which will help at the State Convention Center here in Shillong. So the main why the government held this festival, as you know, Meghalaya is blessed with unique culture. We have very unique topography, geography, and the tourist spot. All over the landscape of Meghalaya itself is a tourist spot, which will enable the people from all over the country, all over the world to come, and if they have to shoot their film and come, and by coming here, it will open the eye of our youth. More importantly, it also help the youth to hone their skill with the help of those international acclaimed film producer or director, as the case may be, and also to promote our state. एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली यूनिट और स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन ने दिल्ली से 2 खासी लड़कियों को बचाया है। 15 और 18 वर्ष की इन लड़कियों को ईस्ट जाइंट हिल से नौकरी का झांसा देकर हरियाणा के एक स्पा में ले जाया गया था, जहां उन पर जबरदस्ती गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था।
केएसयू दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट मारबियांग खोंगविर के मुताबिक लड़कियों ने अपने परिवार से संपर्क किया, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए उनका रेस्क्यू किया गया। प्रशासन ने इसे बाहर नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए एक गंभीर चेतावनी बताया है। नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है। एक सेना की पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकन और यूक्रेनियन मर्सिनरीज म्यांमार में सक्रिय संगठित ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं। इसका प्रभाव मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन इक्विपमेंट और ट्रेनिंग भी दी गई हो सकती है, जबकि 7 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। जांच जारी है। These people, they visited Manipur and apparently were in contact with breakaway groups in Manipur and in Myanmar. The apparent aim was to supply the breakaway groups in Myanmar with the drone and drone components, batteries, chargers, and train the Myanmar separatist groups to operate these drones. These separatist groups will operate not only against a Burmese junta but also against the state of India. Their ultimate aim could have been to give boost to insurgency in northeast India, especially in Manipur. Manipur has been in news of late due to certain internal strifes, internal fight between various ethnic groups. So government of India has put these people in jail for next 11 days. In this 11 days, they will be in judicial custody, and after that, if any blame or any technical error is found against them, then they may be sent on a police remand. Government of India has informed the embassy of Ukraine and US embassy in Delhi details of these individuals and has requested the motive behind this US citizen and these Ukrainians, their motive, why they have visited Manipur without clearance from Government of India Home Ministry. A suitable response from US Embassy and Ukrainian Embassy is still awaited. भारत के झंडे वाली क्रूड ऑयल टैंकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है। इसमें लगभग 80,000 मीट्रिक टन से अधिक क्रूड ऑयल यूएई से लाया गया है। ये शिपमेंट देश की बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्लियामेंट में बीएसएनएल की प्राइवेटाइजेशन की अफवाहों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता और ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी बनी रहेगी। प्राइवेटाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीएसएनएल पूरी तरह से देश की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। बीएसएनएल के आगे 2 ऑप्शंस थे। एक कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज से जैसे दूसरे कंपनीज इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, साउथ कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन या चीन, इनसे हम इक्विपमेंट खरीद के फौजी का नेटवर्क बनाएं। पर प्रधानमंत्री जी ने कठोर निर्णय लिया और कहा कि हम लोग केवल सर्विसेज नहीं करेंगे, हम लोग इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करेंगे। और पहली बार पूरे विश्व में, देश में नहीं सर, पूरे विश्व में केवल 4 देश हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं।
प्रधानमंत्री जी के निर्णय के आधार पर हमारा 4G डिजिटल स्टैक पहले बार विश्व के पटल पर भारत इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो चुका है और हमारा स्वतः 4G टावर हमारे BSNL के सिस्टम में 1 लाख टावर्स सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका लोकार्पण किया है और हमारे आत्मनिर्भर स्टैक के आधार पर हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। 8 करोड़ 55 लाख हमारे उपभोक्ता थे, आज 9 करोड़ 27 लाख हमारे उपभोक्ता हैं और 5G की टेक्नोलॉजी भी हम 4G का एडवांसमेंट करके अतिशीघ्र लाने वाले हैं, पर पहले 4G को हमको स्टेबलाइज करना है और जब निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा हमारे आत्मनिर्भर टावर्स के साथ 4G पर हम करेंगे, उनको जल्द से जल्द हम 5G पर कन्वर्ट करेंगे और उपभोक्ताओं को हर तरीके का सेवा देंगे। प्राइवेटाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में BSNL पूरी तरह से देश की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कतार के रास लफान LNG फैसिलिटी पर मिसाइल हमला हुआ है, जो ईरानियन हमलों के बीच एक बड़ी घटना मानी जा रही है। भारत में ईरान के एम्बेसी ने पुष्टि की है कि भारत की तरफ से मेडिकल सहायता ईरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी को भेजी गई है। रशिया ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान पर हमलों की निंदा की है और बातचीत की अपील की है। वहीं अमेरिका भी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब शहरी कचरे का उपयोग हाईवे कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल से लगभग 80 लाख टन कचरा पहले ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी शामिल है। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए मुझे दिल्ली ज्यादा पता नहीं है, पर यहाँ 4 फाउंटेन है कचरे के, उसमें एक गाजीपुर करके है और बहुत कचरा पड़ा हुआ है। तो मैं बहुत बार जाता था तो मैं कहता था कि यह कचरे का कुछ हो नहीं सकता क्या। तब मैंने एक प्रयोग शुरू किया कि हमने उसको सेग्रीगेट किया, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग निकाला और अभी उस कचरे से हमने 80 लाख टन कचरा हमने दिल्ली मुंबई हाईवे में, जो दिल्ली से जयपुर जाते हैं, और अभी हमने दिल्ली से देहरादून बनाकर पूरा किया। 2 घंटे में आप देहरादून जाओगे। दिल्ली से कटरा हाईवे में, दिल्ली के पेरिफेरल रोड पर, और UR2 बनाए तो सब रोड में वो कचरा डाल दिया फिलिंग के लिए। तो 80 लाख टन कचरा हमने यूज किया और अब देश में हमने ये तय किया है कि जो म्यूनिसिपल लीगेसी वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके हम रोड में उपयोग में लाएंगे, ताकि जो एग्रीगेट हमको पहाड़ खोदने पड़ते हैं, बाकी बातें करनी पड़ती है, तो उसके बजाय हम कचरे का उपयोग करेंगे। चैत्रा नवरात्रि के पहले दिन जम्मू की कतरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहाँ की सजावट देखने की, क्योंकि अभी तक तो टीवी पे देखते थे, वीडियो में देखते थे, आज पहली बार नवरात्रि की सजावट देखेंगे और बहुत एक्साइटमेंट है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबकी यात्रा मंगल में हो, हमारी भी यात्रा मंगल में हो और बारिश जो हो रही है ना वो ना हो, बस अच्छी। पुलिस वाले भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबके लिए शांति रहे, मंगल में हो सबकी यात्रा, सब खुशी से रहे, प्रेम से रहे और अपने देश, हमारा जो देश है वो तरक्की करे, कि माता रानी उन्हें भी बुलाए और उनकी भी मुरादें पूरी करे। जय माता दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक US के B-52 बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए देखे गए हैं। I want to ask you, Director Ratcliffe, yesterday the head of the National Counterterrorism Center resigned, saying that Iran did not represent an imminent threat to the United States. Is there anything to indicate that Iran had ceased in its nuclear ambitions or in its desire to continue to build ballistic missiles capable of threatening American troops and allies in the Middle East? Senator, no. In fact, the intelligence reflects the contrary. So you disagree with Mr. Kent? I do. सऊदी अरेबिया क्षेत्र अस्थिरता के बीच डिफेंस कोऑपरेशन पर पुनर्विचार कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 2 युवाओं को पाकिस्तान से जुड़े एक गैंगस्टर के लिए जासूसी करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूचना संकलन के क्रम में आज जनपद हापुड़ के धौलाना पुलिस को एक सफलता हाथ लगी, जिसमें 2 अभियुक्त अजीम राणा पुत्र सलीम राणा निवासी मुगल गार्डन पिपलेहड़ा थाना धौलाना जनपद हापुड़ और आजाद राजपूत पुत्र नौसाद निवासी जई थाना भामनपुर जनपद मेरठ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों अभियुक्तों के मोबाइल फोन के एनालिसिस से साथ ही साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पूछताछ से तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों अभियुक्त भारत राष्ट्र के सुरक्षा और हितों के पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों की फोटो, रमेश नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली और उससे सटे हुए सनातन मंदिर की फोटो, आसपास की कॉलोनी की फोटो, साथ ही साथ बिसरख में जो प्राचीन रावण मंदिर है उसकी भी फोटो लेने का प्रयास इन्होंने किया था, किंतु रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और सनातन मंदिर की फोटो और वीडियो बना करके जो ISI समर्थित शहजाद भट्टी गैंगस्टर है पाकिस्तान का, उसको इन्होंने सेंड किया था यहाँ से और इससे इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 90/26 धारा 152 61(2) BNS की और साथ ही साथ 3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की अपराध साबित करते हुए इनके विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है और इसकी विधिवत विवेचना और गहन विवेचना की जा रही है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अदालत एक नजर कुछ और खबरों पर। Okay. And is it accurate that China is continuing to receive preferential oil flows from Iran despite the conflict as Iran allows its own tankers to transit the strait? Director Gabbard, I'm going to go back and forth between the two of you. There has been some reporting of China, India, and other countries being able to move their tankers through the strait. However, it is unclear the volume or the measure of that. Okay, so it sounds like it's accurate. Thank you. Well, the BBC was incredible. What they did is they had me speaking something I never said. And I've never seen anything quite like it. You know, CBS had that. We had the situation on 60 Minutes, and not the current owners, the past owners. The current owners, I think, are good, Ellison. But BBC took it a step further. They actually they put words in my mouth, and I said some pretty bad things. And I didn't say them. It was AI generated. And I said, I never said that. In fact, some of my people said, wow, that was pretty bad stuff you said. I said, what did I say? You know, I'm pretty good at this stuff. I mean, if you can go through years of these press conferences and you're a popular president of the United States that won in a landslide, that won all 7 swing states, that got record numbers of votes, I mean, so I guess I'm okay at this stuff. I said, I never said that. And then we found out it was AI generated. And they admit they made a mistake. BBC. But I watched them this morning for some crazy reason, and it was so inaccurate. Their reporting on the war was unbelievable. We have decimated that country. And if you watch BBC, it's almost like they're fighting us to a draw. They're not fighting us to a draw.
अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.